हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट्स है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज डिफाइंड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम रूल। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस in which terms increases or decreases regularly by the same constant. This constant is called the common difference of the progression or series. In other words, an arithmetic progression is that list of number in which the first term is given and each term is obtained by the adding a fixed number d to the preceding term. This fixed number d is called the common difference. This can be positive, negative, or zero. We usually denote the first terms of an AP by A and the common difference by D and the last term by L. If the first term is A and the common difference is D, then A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus ND represents an arithmetic progression for difference values of A and D. So this is the general form of an AP, arithmetic progression. So in an arithmetic progression, D equal to A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to A4 minus A3 equal to an minus 1, and D is a common difference where an denotes the nth term. In general, if an plus 1 minus an is the same for different values of n, or in other words, so an plus 1 minus an is independent of n, then the given list of numbers form an AP. The nth terms of an AP with first term A and the common difference D is, so an equal to A plus n minus 1 D. An is also called the general terms of AP. So if there are n terms in the arithmetic progression, then an represents the last term L. Okay. The sum of first n terms of an AP is given by Sn. यहाँ पर जो sum of n terms है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Sn से. Sn equal to n upon 2 A plus L, where A is the first term and L is the last term. Okay, and L equal to L equal to A plus n minus 1 D. And Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1d, where a is the first term and d is a common difference. तो ये कुछ important points हैं चैप्टर 5 के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड. नाउ चैप्टर 5 के जो एक्सरसाइज 5.1 है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं. और पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्स make an arithmetic progression and why? The taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 1500 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. Okay, so इस टाइप्स के जब भी क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, क्वेश्चंस को 2 से 3 बार आप रीड आउट करें तो वहां पर आपको 70 to 80% प्रॉब्लम वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाएगी. तो अगर हम बात करें, फिर से क्वेश्चन रिपीट करें, the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer. तो अगर ये हमारा फर्स्ट किलोमीटर है, ये हमारा 1 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट 1 किलोमीटर, इसके जो चार्ज है वो कितना अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेबल है आपका 15 रुपीज चार्ज कर रहा है टैक्सी का जो फेयर है. एंड रुपीज 8 किलोमीटर फॉर एडिशनल किलोमीटर. तो जैसे आपका एडिशनल किलोमीटर्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये आपका अगेन 1 किलोमीटर आ गया अब यहाँ पर, और अगेन 1 किलोमीटर हो गया. तो यहाँ पर टोटल अगर हम किलोमीटर्स की बात करेंगे तो ये टोटल 2 किलोमीटर हो जाएगा इस पॉइंट तक. तो जो टोटल अमाउंट होगा वो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, मीन्स
8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 2 इंटू 8. Okay, so according to the statements, the fare for the journey 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer are respectively 15 rupees, 15 plus 8, 15 plus 2 into 8, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, फिगर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. रुपीज 15 plus 3 into 8, so on. So 15, 23, 31 and 39. So this is a AP, arithmetic progression. Okay. So I think आपको ये questions clear हो गया होगा. Since here the terms continually increases by the same number 8, so the list, so list terms, list form of an AP, जो आपकी ये list बन रही है, ये किस form में आ जाएगी आपकी arithmetic progression. Now second question, the cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 rupees for the first meter and rises by 50 rupees for each subsequent meter. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया, सेम यहाँ पर भी आप कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर एंड इट्स सक्सीडिंग मीटर in rupees in given by 150, 200, 250, 300. It means फर्स्ट के लिए आपका 150 है, सेकंड की कंडीशंस क्या हो जाएगी आपकी 150 प्लस 50, थर्ड 150 प्लस 2 इंटू 50. तो इसके अकॉर्डिंग जो सीरीज बन रही है, जो फॉर्म आ रहा है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा. मीन्स 150, 200, 250, 300. सिंस हियर द टर्म्स continually increases by the same number 50, so the list form an AP. Now question, write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म्स गिवन है एंड डिफरेंस आपका जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपकी गिवन है. तो वी नो दैट इफ A is the first term and D is a common factor, then the first four terms की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हो जाएंगे आपकी A plus D, A plus 2D and A plus 3D. तो आप इनकी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए. सॉरी, 10, 10 plus 10, 10 plus 2 into 10 and 10 plus 3 into 10. तो इसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट आएगी, लिस्ट फॉर्म करेगी, वो क्या हो जाएगी आपकी AP आ जाएगी. 10, 20, 30 एंड 40, ये आपका आंसर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपका A जो फर्स्ट टर्म है उसकी वैल्यू गिवन है -2, D कॉमन डिफरेंस आपका 0 गिवन है. तो जो फोर टर्म्स आ जाएंगे A plus D, A plus 2D एंड A plus 3D. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपकी लिस्ट फॉर्म हो रही है -2, -2, -2, -2. ओके, तो ये आपका क्या हो गया आपका AP. नेक्स्ट क्वेश्चन, A इक्वल टू 4 फर्स्ट टर्म से एंड सेकेंड कॉमन डिफरेंस आपका D इक्वल टू -3. तो जो फोर टर्म्स आएंगे अकॉर्डिंग टू जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज है, तो A plus D, A plus 2D, A plus 3D. तो 4 plus -3, 4 plus 2 into -3 and 4 plus 3 into -3. तो जो लिस्ट फॉर्म हो रही है वो आपकी आएगी 4, 1, -2 एंड -5. ये आपका आंसर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपका फर्स्ट टर्म गिवन है एंड कॉमन डिफरेंस आपका D इक्वल टू -2.5. तो अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पर भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है. इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स. तो यहाँ पर आपके पास AP गिवन है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है. आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है. तो 2, 4, 8, 16 गिवन है. तो कॉमन डिफरेंस के लिए जो जनरल फॉर्मूला है D इक्वल टू, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, A2 minus A1 इक्वल टू A3 minus A2 इक्वल टू A4 minus A3. तो इस फॉर्मूले में आप पुट करिए जो भी आपकी सीरीज गिवन है. तो A2 minus A1, so 4 minus 2 इक्वल टू
2, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 4, ओके, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं आ रहा है, जबकि कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका, नॉट फॉर्म ऑफ एपी। ये आपका फॉर्म क्या है, एपी का फॉर्म नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 2, 5/2, 3, 7/2 इस टाइप की कोई आपकी सीरीज दी गई है। यहाँ पर भी आप कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करिए। तो देखिए यहाँ पर 1/2, 1/2, 1/2 सभी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो हेंस फॉर्म ऑफ एपी। तो ये आपका किसका फॉर्म है, एपी का फॉर्म है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर ये 1/2 था, ओके। तो कंटिन्यू की अगर हम बात करें यहाँ पर, एंड राइट 3 मोर टर्म्स आपको लिखना है कॉमन डिफरेंस। जब आपकी ये फॉर्म आपकी एपी की है तो कॉमन डिफरेंस क्या आपका डी इज टू 1/2, तो 3 मोर टर्म्स क्या हो जाएंगे। अभी तो ये आपके कितने 1, 2, 3, 4 टर्म्स है। अब आपको यहाँ पर 5, 6 एंड 7 टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ऑलरेडी ये गिवन है, यहाँ तक 1, 2, 3 ये यहाँ तक गिवन है। एंड 3 मोर टर्म्स की अगर हम बात करें तो आपके ये 3 मोर टर्म्स आएगा a+4d एंड a+5d एंड a+6d। ये वैल्यूज आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये गिवन है, a गिवन है, a+d गिवन है, a+2d गिवन है, a+3d भी गिवन है। क्लियर? तो ये टर्म्स तो ऑलरेडी गिवन है, आपने 4 फाइंड आउट कर लिया, 9/2 फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट आपका आएगा 2 + 6 × 1/2, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो 2 + 3 = 5, ये आपका 7th टर्म्स हो गया। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 5.2। तो fill in the blanks in the following tables given that a is the first terms and the common difference and a and the nth terms of the AP। so यहाँ पर क्वेश्चंस आपकी इस टाइप से इस मैनर में गिवन है। तो यहाँ पर आपको जो fill in the blanks करना है। तो अगर हम बात करें जो गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, nth नंबर ऑफ मीन्स जो टर्म्स है वो गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो यहाँ पर आपको ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म्स की अगर हम बात करें, ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी ए एन की लास्ट टर्म्स की वो 28 आएगी। एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग बाय एल। तो लास्ट टर्म्स को आप एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलर यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स गिवन है, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, और एन की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड ए एन जो लास्ट टर्म्स है, लास्ट टर्म्स की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 0 है। तो ये जो फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म्स का, ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, आप इसमें वैल्यू पुट करिए तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका ए। यहाँ पर आपको ये फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। कॉमन डिफरेंस गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, लास्ट टर्म्स आपकी वैल्यू गिवन है। यहाँ पर फॉर्मूले में आप पुट करिए तो आपका फर्स्ट टर्म्स जो है, फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 46। नेक्स्ट ए डी एन ए एन। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है, आप इस वैल्यू में पुट करिए तो यहाँ से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और क्लियर होता जाएगा। केवल फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा वहाँ पर। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 30 टर्म्स ऑफ द 10, 7, 4 डेज, आपको क्या फाइंड आउट करना है, जो 30th टर्म्स है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 30 टर्म्स आपकी क्या है, मीन्स लास्ट टर्म्स, वो वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। मीन्स A30 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और इसको हम एल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम A30 भी लिख सकते हैं। तो हियर अगर हम बात करें, यहाँ पर फर्स्ट टर्म्स आपका गिवन है A = 10, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 7 - 10 -3 आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पर 30 है। तो वी नो दैट ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस डी। तो इस वैल्यू फॉर्मूले में आप पुट करिए, तो A30 = 10 - 87 = 77 -77, ये आपका लास्ट टर्म्स आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11th टर्म्स ऑफ दी, ये सीरीज आपकी दी हुई है, इसमें आपको 11th टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू -3, कॉमन डिफरेंस आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 5/2। तो ए एन इज टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो A11 मीन जो 11th टर्म्स है उसकी वैल्यू आ गई आपकी 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टर्म्स ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78, मीन 78 आपका क्या है, लास्ट टर्म्स है।
78 आपको क्या है लास्ट टर्म से। टोटल आपको नंबर ऑफ फाइंड आउट करना है कि टोटल यहाँ पर टर्म्स कितने हैं। ये आपकी जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, क्योंकि लास्ट टर्म्स आपका गिवन है, इसको आप A78 भी बोल सकते हैं, या AN की हम बात करें, प्लस ये आपका लास्ट टर्म्स भी है, क्या आपका L टर्म्स भी है। ओके, तो नाउ वी हैव ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, कॉमन डिफरेंस आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म। So now let 78 is the n terms of the given arithmetic progression. So then an is equal to 78, total जो values है 78 है, और a plus n minus 1d is equal to 78. तो यहाँ से आप n की वैल्यू, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स आपके 16 टर्म्स हो जाएंगे। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सीरीज दी गई 7, 13, 19 एंड 205। 205 आपकी लास्ट टर्म्स की वैल्यू है, लास्ट टर्म्स की वैल्यू क्या आपकी 205, इसको आप AL से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये AN से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 205 गिवन है आपका, तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म्स की वैल्यू आपकी a is equal to 7 and common difference is what, common difference is the second terms minus first term, so 13 minus 7 is equal to 6। तो यहाँ पर 205 is the nth term, तो an is equal to a plus n minus 1t। तो यहाँ पर n टर्म्स की जो वैल्यू आएगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ जाएंगे आपके 34। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 31st टर्म्स ऑफ एन AP whose 11 टर्म्स इज 38। अब यहाँ पर आपको 31 टर्म्स फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर 11 टर्म्स गिवन है, उसकी वैल्यू आपकी 38 है, और 16 टर्म्स गिवन है, उसकी वैल्यू आपकी 73 है। So now let A be the first terms and D be the common difference of AP। So now an is equal to a plus n minus 1d। तो A11 11 टर्म्स की अगर हम बात करें तो 11 टर्म्स क्या हो जाएगा, a plus 10d इक्वल टू 38, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, एंड A16 इक्वल टू a plus 15d इक्वल टू 73। तो आपकी एक क्वेश्चन हो गई। आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशनल मेथड या ग्राफिकल मेथड, जो भी मेथड्स है उसके थ्रू आप इस टाइप्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, दोनों फर्स्ट इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो एक टर्म्स आपके यहाँ पर कॉमन आ रही है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से आप डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे सिंपली। सो डी इज इक्वल टू 7। ओके, एंड नाउ डी की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इक्वल टू -32। तो 31 की जो वैल्यू है 8, जो 31st टर्म्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 30d, यहाँ पर ये 178, ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और एक्सरसाइज 5.3 की भी बात करेंगे वहाँ पर। तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कहीं अगर कोई डाउट है, कोई फीडबैक अगर आप देना चाहें, सजेशन देना चाहें, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा, कमेंट्स जरूर करिएगा। जय हिंद।